And everyone? Okay. Shall we move? Okay. Now, next is the fill in the blanks. You have to put the adjectives which is given in your brackets. Right? Correct form we have to put. Okay. So B is the fill-ups. Right? Number one is the pen is dash, then the sword. Right? And the form which is given to you is might. So what we will write here? Put the correct form, miter. Right? Mighther. Right? Are you all able to see? Okay, I'll write again. Wait. Okay, now it is visible. Miter. Okay. Okay, I'll write again for you so that you can all see. The pen is miter. Okay. Then the sword. It is visible to all of you now. You all can see. Okay. Next is prevention. Is dash. Then cure. Right? So now in the bracket they have given you good. So now you have to put the correct form. So what will be the correct form? Better. Right? Write down fast, then we'll move to next. Prevention is better than cure. Next, third is honesty is the dash policy. Right? So now what they have given? Good in the bracket and you have to put the
correct form. Okay, honesty is the best. It is one of the, you have to give the adjective correct form, so it will come here best, right? Write down. Done. Okay. Now we'll move to next. Fourth one, that is bold is dash than silver. Right? So now what you have to do, you have to put the correct form, and in the bracket is given to you is precious. So gold ज्यादा अच्छा है, ज्यादा precious है, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव में? More, will add more to the word precious. Okay. Gold is more precious than silver. Right? Now next, leaf is the dash of all metals. Right? So what is given to you is heavy. Right? So what you have to write? Heaviest. You have to change it. You have to write the correct form. So heaviest. Done. Okay? Clear? Next, sixth one. My knife is dash than yours. Right? So what is given to you in the bracket? Sharp. And it is, they are comparing. Okay, so we'll put the correct form. That is sharper. Right? So note down everyone.
Okay. Next. Is the seventh one. We have not heard the dash news. So, what it is written late. What is late? We have to put the correct form, that is latest. Okay. So, we have not heard the latest news. Right? Next, Archana is dash than Anita. Right? So, pretty it is written. So, what we will write? More pretty. Companion. Right? Okay. Next, this is the dash emporium in the city. Okay. So it is given here large. So correct is largest. Okay. Write down everyone. Note down this. Done. Okay. Now the last one. Which of these two books is dash? Right? Good. Good can't be there. So the answer is correct form is better. कौन सी better है? This one or this one? That one, sorry. So you have to write the correct form, that is better.
Note down, everyone. Done, all of you? Okay, okay. Now, the third, that is correct the following sentence we will do in our next class. But before that, you all take out page number 66 in your books. Page 66. It is given that D, exercise D is given, right? So, in that exercise, it is given you have to write the correct degree of comparison, okay, which I have already explained you, right? So you will do this yourself, right? You have to do this yourself. You will try to solve all these. I will not do it for you. You will try to do this one, right? But the C1, question number C, exercise C, that I will help you in doing, right? But not the D one. Okay, because I've explained you, we have done 3 exercise on the board. So now it's your turn. That means it will give a clarification. It will, that means you will try to understand that how much you have gained, how much you have understood what we have done on the board, right? Yes, am I right? If you have done, it is good. If you have not done, you have to do. Right?
So now you have to solve this. Okay, bye all of you, and try to solve exercise number D. Right? Okay. Bye and thank you everyone. Good morning, students. Yes, good morning, good morning.
Yes, good morning all of you. How are you students? कैसे हो बच्चों? आवाज आ रही है आपको? ओके, बोर्ड क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, लेसन 11 इज कंप्लीटेड। लेसन 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर उसमें आपको कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है तो अभी मुझसे पूछिए। ओके, आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट न्यू लेसन, लेसन नंबर 12। तो आपको जो भी अभी पूछना है, कुछ डाउट हो लेसन 11 में, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, पूछिए। Any question, any doubt in lesson number 11? है कुछ डाउट? आर्यन, आयुष, प्रतीक, कुशाल, आरती, अनीश, नाथावत, भव्य, प्रतीक, गुरमेश, राजवीर। ओके आयुष, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, आज मैंने आपको आंसर भी सेंड किया है। इसके क्वेश्चन आंसर जो है आपका 9 क्वेश्चन है, उसका मैंने आंसर सेंड किया है। उसमें मैंने कुछ ब्लैक से कर दिया है, रब कर दिया है, तो पेंसिल से वो वर्ड आपको नहीं लिखना है आंसर नंबर 9 में। ओके, और लेसन और क्वेश्चन 8 भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। आंसर नंबर 8 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके, यहाँ तक आपको करना है, फिर ये लाइंस करनी है आपको। ओके, ये कंटिन्यू इधर ये मत करने लग जाना, बस आपको यहाँ से ये और फिर ये मैंने ब्लर किया है। और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? ए कंट्री, यहाँ से लेकर यहाँ। ओके, बीच में ये मैंने पेंसिल से क्रॉस किया है, ये नहीं लिखना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट न्यू लेसन, लेसन नंबर 11, लेसन नंबर 12। अब देखिए लेसन नंबर 12 जो है वो क्या है? लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ। लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ, यानी कि हम काफी टाइम जिए, काफी लंबी उम्र जिए हैं और हेल्थी रहे। ओके, स्वस्थ रहे हम और इस तरह से हम जिए और काफी लंबी उम्र अपनी हो, तो यह है स्वस्थ। स्कूल कब ओपन होगी? ये स्कूल से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, स्कूल से आपको मैसेज मिल जाएगा। ओके, जो भी मैसेज आएगा वो सबके पास में एक साथ आएगा। जो भी क्लासेज है, जो भी ओपन होगी, किस हिसाब से होगी, तो ये सब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, पर्सनली जैसे जो आपके टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनसे नहीं, वो आपको डायरेक्ट स्कूल से मैसेज मिलेगा। ओके, जो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइंस होगी, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट होगा, तो जो गाइडलाइंस होगी उसी के अकॉर्डिंग स्कूल ओपन होगी और आपको उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेंड कर दी जाएगी। ओके, और कुछ प्रियांश, जो भी टाइम होगा, जो भी होगा, सब उसमें बताया जाएगा। ओके, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, न्यूज़पेपर से मिल जाएगी। जो भी टाइम होगा, जो भी शेड्यूल होगा, वो आपको पता लग जाएगा। ओके, यस, कम ऑन द टॉपिक लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ। अब देखिए बच्चों, प्रेजेंट की जो कंडीशन है, जैसी सोसाइटी में हम रहते हैं, ओके, जो टेक्निक प्रेजेंट में अपने पास में है, वैसी जो टेक्निक है वो एंशियंट टाइम में नहीं थी। ओके, उस समय ऐसी टेक्निक कोई डेवलप नहीं थी, तो उस समय की जो लिविंग स्टैंडर्ड था, और प्रियांशी आप बाकियों की चिंता मत करो, क्लास या फुल क्लास उसकी छोड़ो, स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे डेली नहीं आते हैं, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो बच्चे एब्सेंट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो क्लास ज्वाइन नहीं करे तो आप उनकी चिंता मत करो। ओके, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। यस,
तो उस समय की जो लाइफ स्टैंडर्ड था, लाइफ स्टेटस था, या जो भी सोसाइटी थी, उसमें प्रेजेंट में काफी डिफरेंस है। उस समय जो डिजीज होती थी तो उनका इस तरह से प्रॉपर वे में हो सकता है इलाज किसी का हो जाता हो, किसी का नहीं भी हो सकता था। बट उससे भी पहले अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो उस समय जो टेक्नोलॉजी नहीं थी, ओके, प्रॉपर मेडिसिन नहीं थी, डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज थी उनकी नॉलेज नहीं थी, ओके। बट प्रेजेंट में ऐसा पॉसिबल हो रहा है। तो दोनों में काफी डिफरेंस है, ओके। अब देखिए बुक में क्या लिखा है, टू लिव ए लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ वी नीड मेनी डिफरेंट थिंग्स। कि हम हेल्थी रहें, लंबे टाइम तक रहें, उसके लिए बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत होती है, डिफरेंट थिंग्स की हमें जरूरत होती है। वी नीड ए क्लीन एनवायरनमेंट, उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। प्रेजेंट में प्रियांशी अपनी स्कूल ऑफ है, सभी स्कूल ऑफ है, पूरे वर्ल्ड में लगभग ये कंडीशन है, ओके। तो वो क्यों है, बिकॉज अभी जो डिजीज चल रही है, कोरोना चल रहा है, कोविड-19, उसमें उसका जो प्रिक्योर जो ट्रीटमेंट है, ओके, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन की है, कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की है, जो स्कूल्स हैं, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं और काफी रश रहता है, तो उनसे जो ये है बीमारी ये ज्यादा फैल सकती है, बच्चों पर भी इफेक्ट उसका पड़ सकता है और उनके थ्रू दूसरों को भी फैल सकता है, बिकॉज ये चीजें कम्युनिकेबल डिजीज, ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसलिए गवर्नमेंट भी अपनों को स्वस्थ रखने के लिए ही स्कूल्स ओपन नहीं कर रही है, ओके। आपको पता है कि स्कूल में बच्चे आएंगे तो बच्चे थोड़े केयरलेस भी होते हैं, इसलिए उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, हर बच्चे आप तरह के बच्चे आते हैं, छोटे भी हैं, बड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने अभी मना कर रखा है, ओके। स्कूल के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा है। तो केवल इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी पीपल है, जो भी सिटीजन्स हैं, उनके जो बेसिक नीड्स है उन सबका ध्यान रखें, ओके। तो उसी में एक आती है कि जो हेल्थ है वो भी, ओके। इसीलिए अपने प्रेजेंट में जो कंडीशन चल रही है कि स्कूल्स वगैरह है, कॉलेज है, ये ओपन नहीं हो पा रहे, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ओपन नहीं हो पा रहे, उसका एक रीजन ये, ओके। गुड मॉर्निंग लिपिका। अब देखिए, वी नीड ए क्लीन एनवायरनमेंट, तो अपना एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए एंड हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, न्यूट्रियस फूड होना चाहिए। न्यूट्रियस में उसमें जो भी प्रोटीन, विटामिन से जो भी है न्यूट्रिएंट्स, वो सब उसमें होने चाहिए। वी आल्सो नीड गुड मेडिकल केयर, इसके अलावा क्या जरूरी है कि गुड मेडिकल केयर भी होना जरूरी है, कि कोई बीमारी है तो उसका प्रॉपर क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके लिए मेडिसिन होनी चाहिए, वैक्सीन होनी चाहिए, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उनके लिए प्रॉपर भी फैसिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये सब भी जरूरी होता है। ए लॉन्ग टाइम बैक ह्यूमन डिड नॉट अंडरस्टैंड डिजीजेज, बहुत टाइम पहले, एंशिएंट टाइम की बात करें या उससे भी पहले की बात करें, ओके, तो उस समय जो पीपल थे, लोग थे, उनको ज्यादा डिजीज के बारे में नॉलेज नहीं थी। डिफरेंट टाइप की डिजीज होती है, बट उनको इतना पता नहीं था कि ये किस तरह की बीमारी है, इसका नाम क्या है, ओके। तो उस समय बस बीमार है, बीमार है, ओके, एंड thus did not know how to cure them, और उनको पता भी नहीं रहता था कि हम किस तरह से इसको क्योर कर रहे हैं, किस तरह से हम इससे बचें, किस तरह से हम इसका इलाज कर रहे हैं, इसकी कौन सी मेडिसिन होगी। तो उस समय काफी एंशिएंट टाइम में जो है, स्टार्टिंग में इस तरह की कोई चीजें नहीं थी। डिजीजेस वर कंसिडर्ड टू बी ए कर्स ऑफ गॉड, और उस समय क्या होता था कि जो बीमारी है, जो भी डिजीज हो रही है, तो ऐसा मान लिया जाता था कि ये ईश्वर की दी हुई है, ईश्वर की तरफ से ईश्वर ने हमको कोई श्राप दे दिया, ओके, और हमने कोई बुरा काम किया होगा इसलिए बीमार हो, ओके, तो ऐसा मान लिया जाता था। बट टुडे ड्यू टू ट्रेमेडियस प्रोग्रेस मेड बाय मेडिकल साइंस, ट्रेमेडियस का मतलब है स्पीड से, तीव्र गति से, भयानक भी होता है, बट यहाँ पर ट्रेमेडियस का मतलब है कि स्पीड, है ना, या फिर काफी जो डेवलप होता है उसके लिए भी ट्रेमेडियस यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट में क्या है, मेडिकल साइंस की काफी प्रोग्रेस हुई है, ओके, और उस प्रोग्रेस की वजह से डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीजेज हैं उनके बारे में हमें पता लगा है, उनके रीजन पता लगते हैं कि किस कारण से होती है, कॉजेज उसके क्या है, और किस तरह से उससे बच सकते हैं, क्या हमें उसके लिए वैक्सीन यूज करनी चाहिए, मेडिसिन यूज करनी चाहिए, किस तरह से हम उससे दूर हो सकते हैं। तो प्रेजेंट में क्या है, मेडिकल साइंस काफी डेवलप हो गई है, और उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज है उनकी नॉलेज हमें हो गई है, और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए ये भी हमें पता लगा।
We understand why disease occur. Several methods of diagnosing disease have been developed, और डिफरेंट टाइप्स की जो बीमारियां हैं, डिजीजेस हैं, और उनको कैसे डायग्नोस किया जाए, कैसे उनको दूर किया जाए, कैसे उपचार किया जाए, कैसे उनका निदान किया जाए, इसकी भी काफी फैसिलिटीज या मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है और उसकी हमें नॉलेज हो गई। Thousands of medicines are now available, हजारों medicines available हैं, and more are being developed to treat different diseases. थाउजेंड से भी ज्यादा जो है वो अपने पास जो मेडिसिन है वो अवेलेबल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डेवलप की जा रही है। जैसे आपने को प्रेजेंट की जो कंडीशन है, इसमें देखिए प्रेजेंट में क्या है, जो कोरोना की जो बीमारी है तो उसकी कोई वैक्सीन नहीं है, बट उसकी वैक्सीन क्या की जा रही है, डेवलप की जा रही है, जिससे कि हम उससे बच सकें और आपकी स्कूल वगैरह है जो भी है प्रॉपर, जो पहले से जो लाइफ चल रही थी वो प्रॉपर रेगुलर चल सके। ओके, तो प्रेजेंट में क्या पॉसिबल है, बिकॉज जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो गई है, तो हर तरह की बीमारी का इलाज यहाँ पर खोज लिया जाता है। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम मेजर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन साइंस। तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे, ये देखेंगे कि कौन कौन से डेवलपमेंट हुए हैं मेडिकल साइंस में। अब देखिए फर्स्ट इसमें पॉइंट है क्लिनिकल थर्मामीटर। ओके, तो क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय क्लिनिकल थर्मामीटर, कि ये होता क्या है। तो आपको सबको पता होगा कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपके फीवर वगैरह हो रहा है तो वो आपका जो टेम्परेचर है वो रीड करता है। ओके, उसके लिए वो क्या करता है, एक थर्मामीटर यूज करता है। आपने देखा होगा जब आप छोटे बच्चे थे तो मुंह के अंदर एक वो थर्मामीटर डाला जाता है, कांच का बना हुआ रहता है, उसमें पारा और मरकरी भरा हुआ रहता है। ओके, तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स के से वो अपनों को चेक करते हैं। तो वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो डिजीज वगैरह का जो अपना टेम्परेचर रहता है बॉडी का, उसको मेजर करने में यूज होता है। ओके, देखिए बुक में क्या है, ऑफन व्हेन वी फॉल इन आवर बॉडी बिकम वार्म, जब हम बीमार होते हैं तो अपने पेरेंट्स को आपने देखा होगा, वो अपने को टच करते हैं, सिर पे टच करते हैं, हाथ को पकड़ते हैं, कहते हैं हाँ इसके बुखार हो गया, लेकिन वो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होता। ठीक है, हम गर्म हो गए, बुखार हो रही है, लेकिन प्रॉपर कितना टेम्परेचर है उसका, अपनी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 पॉइंट समथिंग है सेल्सियस में, 98 पॉइंट समथिंग है फ़ारेनहाइट में। ओके, वो उससे मेजर नहीं हो पाता, बस ये है कि हाँ बुखार हो गया, अपनों को टच कर दिया। लेकिन थर्मामीटर से अपने बॉडी का जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो मेजर कर दिया जाता है कि टेम्परेचर इनका कितना है, उससे पता लगता है इसकी कितनी तेज बुखार है। तो ये थर्मामीटर उसमें यूज होता है। ओके, yes, this is known as fever. fever is a sign of disease। तो fever क्या है, एक जो बीमारी का एक साइन होता है कि अपने बीमारी कौन सी है ये तो बाद में पता लगता है, बट टच करने से हमें पता लगता है कि बुखार है। बुखार होने के रीजन डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, मलेरिया में बुखार हो जाता है, डेंगू में बुखार हो जाता है, कोरोना में भी बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, बहुत सारे डिजीज है जिसके अंदर अपनी क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है। When you complain that you are not feeling well, your parents touch your forehead to find out if it is warm or not। अगर आप पेरेंट्स को कंप्लेन करते हैं कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हम बेटर फील नहीं कर रहे हैं, है ना, कुछ अलग सा लग रहा है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको टच करते हैं, सिर पे हाथ लगाते हैं, आपको चेक करते हैं, और अगर आप वार्म हो रहे हो, गर्म हो रहे हैं, तो पता लग जाता है कि आपको फीवर हो गया। ओके, but this does not give a correct idea about the fever you have। लेकिन इससे करेक्ट आइडिया नहीं लगता कि आपके बुखार तो है, बट कई बार ऐसे भी हो सकता है कि बुखार कितना है, बिल्कुल मामूली सा है या ज्यादा है, तो करेक्ट आइडिया नहीं लग पाता। और किस टाइप का फीवर हो, यहाँ पे जो बुखार हो रहा है वो किस टाइप का, किस रीजन से हो रहा है, ये भी पता नहीं लग पाता। सो दे मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ए क्लिनिकल थर्मामीटर। तो फिर वो क्या करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर से अपनों को चेक करते हैं कि अपने कितना फीवर हो रहा है। ये भी डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर भी होके डिजिटल भी आता है। अब देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर को चेक करते हैं, टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड, उससे अपने को पता लगता है अपना शरीर कितना गर्म है या कितना ठंडा है, समथिंग इट इज मेजर इन सेल्सियस डिग्री
में भी ये मेजर किया जाता है। अब डेंगू महामारी चल रही थी, डेंगू हो गया तो इसमें डिफरेंट क्या हो, ऐसा थोड़ी ना कि डेंगू की महामारी चल रही थी और आपके चिकनगुनिया हो गया। ओके, हो भी सकता है, जरूरी नहीं कि अभी जिनके अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना की ये एपिडेमिक है, महामारी है, तो उस समय दूसरे जुकाम भी तो हो रही है, खांसी भी हो सकती है, डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, चिकनगुनिया भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। जरूरी नहीं कि जब एक बीमारी चल रही है, अब आपने कहा डेंगू चल रहा था, मेरे डेंगू हो गया। ओके, तो अब बताइए हम क्या करें। अब तो सही हो ना, सही हो गया डेंगू, भव्य मीना, अब तो सही है ना डेंगू। ये देखो भव्य मीना के डेंगू हुआ और आयुष कह रहे हैं हाँ आप सही है। भव्य मीना टेल मी, अब तो सही है। ओके, तो आप ये अननेसेसरी मत किया करो। ओके, बहुत जरूरी हो तो ही चैट किया करो। आपने लिखा यस सर, जब डेंगू महामारी चल रही थी तब हमारे डेंगू हो गया। अब बताओ इसकी क्या जरूरत थी टाइम वेस्ट करने की। तो अननेसेसरी कोई भी चैट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक तो डिग्री सेल्सियस में अपना टेम्परेचर मेजर किया जाता है और डिग्री फ़ारेनहाइट में किया जाता है। आपके मैथ में भी आते हैं क्वेश्चन, कन्वर्ट भी करना पड़ता है इनको। ओके, तो ये आपको आना चाहिए कि फ़ारेनहाइट क्या होता है और सेल्सियस क्या होता है, तो उसमें दोनों रहते हैं। तो डिग्री सेल्सियस में तो 37 के आसपास होता है और फ़ारेनहाइट में क्या होता है 98 के आसपास होता है। तो कभी फीवर होता है ऐसे मत कहना कि मेरे तो 102 डिग्री बुखार सेल्सियस बुखार होगा, तो सेल्सियस नहीं होगा, वो फ़ारेनहाइट होगा। सेल्सियस में तो क्या होगा 39 या 40 हो सकता है। ओके, ज्यादा हो। अगर आप ऐसे कहेंगे मेरे तो ये 102 डिग्री सेल्सियस बुखार हो गया, तो 100 डिग्री में तो बॉइलिंग शुरू हो जाती है। ओके, 100 डिग्री में तो क्या हो जाता है, आपने देखा होगा ना वाटर 100 डिग्री में क्या हो जाता है, बॉइल होना शुरू हो जाता है। तो आप खुद सोचिए अगर आपके 100 से भी अब डिग्री सेल्सियस फीवर हो गया तो बॉइलिंग शुरू हो जानी चाहिए ना अपने। ओके, तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं 102 डिग्री सेल्सियस बुखार होगा, पता नहीं कैसे हो जाता है। वेरी गुड। इसी तरह प्रियांशी ने भी एक आंसर पूछा है मुझे, क्वेश्चन पूछा है प्रियांशी, व्हाट इज मीन ऑफ रहने लर्ने। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, जब वो आएगा तो बता देंगे। ओके, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो किसी के नेम की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, है ना, कि उसका मीनिंग क्या होगा। अभी जबकि उस टॉपिक पर अपन आए नहीं, स्टेथोस्कोप के जो इन्वेंटर है उनका नाम था रेने लेनियर, तो उसका मीनिंग क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, बस उनका नाम जरूर पता है, उनका नाम है रेने लेनियर, जैसे आपका नाम प्रियांशी है। ओके, प्रखर है, किसी का प्रतीक है, मेरा रवि है, लिपिका है, उसी तरह उनका भी ये नेम है और मीनिंग तो मुझे पता नहीं क्या होगा उसका, बट ये उनका नाम। क्लियर है प्रियांशी? तो आप इतने एडवांस मत चलो, अभी उसमें काफी टाइम है उस टॉपिक में। अभी मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, आप कहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए। क्लियर है बच्चों? देखिए, द क्लिनिकल थर्मामीटर वाज इन्वेंटेड बाय गैब्रियल डेनियल फेरेनाइट, इसके अंडरलाइन कीजिए। तो फेरेनाइट उनका नाम था, 1900 डिग्री फेरेनाइट भी हो गया। ओके, अंडरलाइन कीजिए, वो इन्वेंटर क्लिनिकल थर्मामीटर गैब्रियल डेनियल फेरेनाइट। ओके, शॉर्ट में भी आप इसको लर्न कर सकते हैं, स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, GD फ़ारेनहाइट कर सकते हैं। ओके, बट कोशिश करना कि स्पेलिंग पूरी आए आपको। नेक्स्ट आता है अपने स्टेथोस्कोप। आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर के गले में कुछ लगा हुआ रहता है। ओके, तो अपनी वो हार्ट बीट उससे मेजर करता है, अपने यहाँ उसको टच करता है और वो सुनता है। ओके, तो अपनी हार्ट बीट को चेक करता है कि अपनी जो हार्ट बीट है जो कि 1 मिनट में लगभग 72 या 82 के आसपास है, इतनी बार बीट करनी चाहिए। ओके, तो वो हार्ट बीट को चेक करता है कि अगर अपने फीवर है तो क्या प्रॉब्लम है, तो स्पीड उसकी बढ़ जाती है। ओके, या कम है या ज्यादा है, वो उससे मेजर करता है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर गले में लगा कर रखते हैं, दिस इज कॉल्ड
स्टेथोस्कोप, कुछ बच्चे उसको भी थर्मामीटर बोल देते हैं। ओके, ये डॉक्टर में थर्मामीटर, 5th क्लास में हो ना तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो चेक करते हैं मुंह में डाल के या ऐसे, तो वो तो होता है अपना कौन सा, वो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, जो डॉक्टर के गले में लगा हुआ रहता है और अपनी हार्ट बीट जिससे चेक की जाती है। दिस इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप। ओके, when you are ill you go to a doctor, the doctor examine your chest and back, और बैक भी चेक करता है वो with a stethoscope। ओके, तो बच्चों को अच्छा भी लगता है वो, जब डॉक्टर पीछे चेक करता है ना, तो आप छोटे बच्चे हो ना 5th के, तो बच्चों को अच्छा भी लगता है कि डॉक्टर पीछे से चेक कर रहा है, फिर आपको कहते हैं थोड़ी सांस लीजिए तेज। ओके, तो अपने चेस्ट एंड बैक जो है वो अपनी चेक करता है, तो वो जो डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, उसे ही स्टेथोस्कोप कहते हैं। The doctor is able to listen the sound of your heart and your breathing through the instrument. It helps them to find out what you are suffering from. तो उनको पता लग जाता है कि आपके कितनी बुखार है, किस रीजन से खांसी है, शरीर में क्या प्रॉब्लम है, तो बहुत कुछ उनको उससे पता लग जाता है। The stethoscope was invented by a French scientist called René Lanier. ओके प्रियांशी, तो जो स्टेथोस्कोप है उसको डिस्कवर या उसको इन्वेंट, डिस्कवर नहीं, उसको इन्वेंट करने वाले कौन थे, एक फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे और उनका नेम क्या था, रेने लैनियर। ओके, अब इनका नाम का मीनिंग नहीं पता आपने, हिंदी में जो नेम होते हैं उनके तो फिर भी कुछ मीनिंग निकल जाते हैं, बाकी इनके जो नेम रहते हैं उनका मीनिंग उन्हीं को पता होगा। तो उनका जो नेम था वो क्या था, रेने लैनियर। ओके, क्लियर है प्रियांशी? प्रियांशी, ओके, अंडरलाइन कीजिए। The stethoscope was invented by a French scientist called René Lanier. उदय से पढ़ा रहे तो ठक ठक आवाज आ रही है, वो फैन की आवाज आ रही है, मैंने फैन कम कर रखा है। ओके, तो ठक ठक मत सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वही सुनो। अब फैन की तो आवाज आएगी ना, फैन में ऑफ कर तो प्रॉब्लम होगी, तो ठक ठक मत सुनो। आप क्लास में पढ़ते हो तो आप भी तो ठक ठक करते रहते हो, सब बच्चे क्लास में कितना बोलते रहते हो, नीचे तक आवाज जाती है, ऑफिस तक आवाज चली जाती है, ऊपर तक आवाज जाती है, पास की क्लास में से आवाज आती रहती है। ओके, तो जो आपको पढ़ना है उसी में ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन उसी में होना चाहिए कि वो ही बच्चे पढ़ पाते हैं जो कंसंट्रेट रखते हो, आसपास क्या हो रहा है उससे किसी को कोई मतलब नहीं। अगर आपका मन पढ़ाई में है तो आपको केवल वो ही चीज सुनाई देगी, वो ही दिखाई देगी। अगर आपका माइंड डाइवर्ट है तो आपको खटखट फटफट सभी चीजें सुनाई देगी। मुझे भी आवाज आ रही है बाहर से, कुछ रोड पर लोग आते जाते रहते हैं, आवाज आती रहती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब नहीं आ रही ना, कम हो गई आवाज खटखट की। यस, माइक्रोस्कोप। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज ए टाइनी ऑब्जेक्ट एंड मेक इट लुक मच लार्जर। आपने भी कभी देखा होगा, ओके, कि उससे जो छोटी छोटी चीज रहती है, जो बिल्कुल जो हमें नॉर्मल दिखाई भी नहीं देती या काफी स्मॉल दिखाई देती है, तो हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो वो क्या होती है, एक्सटेंड हो जाती है और हमें थोड़ी लार्ज साइज में वो दिखाई देती है, बड़ी साइज में हमें दिखाई देती है। ओके, तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रो मीन्स क्या होता है, बिल्कुल टाइनी, जो बिल्कुल छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम माइक्रो बोलते हैं। तो उसी को देखने वाला जो डिवाइस है कि उसको हम बड़ा करके देख सकते हैं, उसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। ओके, माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज ए टाइनी ऑब्जेक्ट एंड मेक्स इट लुक मच लार्जर। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल टाइनी, यानी कि बिल्कुल जो छोटी सी चीज है और जो हमें दिखाई भी नहीं देती, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देती। ओके, तो उनको भी ये देख सकता है।
इसकी हेल्प से अपन देख सकते हैं। इट हेल्प अस टू सी थिंग्स विच आर टू स्मॉल टू सी विद द नेक्ड आई, जो इतनी छोटी है अपनों को डायरेक्ट दिखाई भी नहीं दे सकती, या इतनी छोटी कि हम उसको समझ में नहीं पा रहे, उसको भी ये बड़ा दिखा देती है। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज प्रोबेबली मेड ज़कारिया जानसीन। फिर यहाँ से ये भी नाम है ना, तो यहाँ पे जो भी रेड वाला दिखाई दे रहा है ना, ज़कारिया जानसीन, तो ये भी नेम है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं होगा, बस ये कि माइक्रोस्कोप को जो इन्वेंट करने वाले हैं, उसका आविष्कार करने वाले हैं, उनका नाम क्या था, ज़कारिया जानसीन। अंडरलाइन कीजिए इसमें। उदय सेन, अभी भी आ रही क्या आवाज आपको ठक ठक की? क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपको मैच द फॉलोइंग में भी दे सकते हैं। ओके, एक तरफ स्टेथोस्कोप दे दिया, क्लिनिकल थर्मामीटर दे दिया, माइक्रोस्कोप दे दिया, और स्कैनर दे दिया, एक्सरे दे दिया। ओके, और उनके साइड में उनके इन्वेंटर्स के नेम दे दिए, तो आपको मैच करना होगा, तो आपको सब ये लर्न होना चाहिए। इन अबाउट 1590, लगभग कब 1590 के अंदर इन्होंने इसका आविष्कार किया था। ही वाज ए स्पेक्टेकल मेकर इन हॉलैंड। स्पेक्टेकल मींस क्या होता है, जो चश्मा वगैरह होता है उनको स्पेक्टेकल बोलते हैं। तो चश्मा बनाने वाले थे, लेकिन उनको लगा कि क्यों नहीं हम इसकी कुछ रेंज बढ़ा दें। तो फिर उन्होंने देखा कि जो छोटी चीज है, वो चश्मे से जो लोग थोड़ा कम देख पाते हैं, तो उनके चश्मा लगाना पड़ता है, जिससे कि वो चीज उनको बड़ी दिखाई देती है। ओके, तो उन्होंने कुछ टेक्निक यूज की और उसकी कुछ रेंज बढ़ा दी, तो उसमें बहुत जो स्मॉल चीज थी, ओके, वो थोड़ी और लार्ज दिखने लगी। तो इसी बेस पर उन्होंने क्या किया, जो माइक्रोस्कोप है उसको इन्वेंट कर दिया। कब किया? 1590 में। ही वाज ए स्पेक्टेकल मेकर इन हॉलैंड। सेवरल साइंटिस्ट हेल्प टू इंप्रूव द माइक्रोस्कोप, और उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने उसकी क्वालिटी को और भी इम्प्रूव कर दिया, और बहुत ही जो इस तरह के माइक्रोस्कोप डेवलप किए गए, इन्वेंट किए गए, जो कि बहुत ही जो बिल्कुल टाइनी, जो कि बहुत स्मॉल से स्मॉलर जो थिंग्स थी उनको भी वो देख पाते थे। ओके, बैक्टीरिया से हम इसको नॉर्मल नहीं देख पाते, ओके, बट उससे देख सकते हैं, जर्म से उनको देख सकते हैं। ओके, तो ऐसे पावरफुल माइक्रोस्कोप इन्वेंट किए गए डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा, तो उनसे काफी अपनों को हेल्प। Microscope contributed a lot to development of medicines. With its help, scientists were able to see for the first time the germs. और इसी वजह से उन्होंने जो जर्म्स था उनको भी वो देखने में सक्षम हो पाए, उन्होंने वो एबल हो पाए। दे कॉज डिजीजेस, कि ऐसे जर्म जिससे कि बीमारियां होती हैं, हेल्पफुल जर्म्स भी होते हैं, और जो है हार्मफुल भी होते हैं, तो उनको भी वो देख पाए। ओके, ओवर द years they have been able to identify germs that cause different disease, और फिर बाद में डिफरेंट डिजीज के लिए डिफरेंट टाइप्स के जर्म्स रेस्पॉन्सिबल हैं, उनको भी वो उसकी वजह से देख पाए, उनका क्लासिफाई कर पाए, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर पाए। इट देन बिकम पॉसिबल टू फाइंड मेडिसिन दैट कुड क्योर डिजीज बाय किलिंग दोज जर्म्स, और इसी वजह से फिर बाद में क्या हुआ, ऐसी मेडिसिन को डेवलप किया गया है जो कि उन जर्म्स को, हार्मफुल जो भी जर्म्स है, कीटाणु है, विषाणु जो भी है, उनको मार सके। ऐसी मेडिसिन भी जनरेट की गई। ओके, टुडे डॉक्टर्स एग्जामिन द ब्लड और यूरिन और पेशेंट अंडर ए माइक्रोस्कोप टू सी द जर्म। अब कभी जाते हैं तो ब्लड चेक होता है, यूरिन चेक होता है, तो उसमें वो माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि उसमें कौन से जर्म्स हैं। ओके, तो उनको पता लग जाता है कि ये बीमारी है, इस वजह से हो रही है, उसके लिए फिर हम उनको वो मेडिसिन देते हैं। दिस हेल्प देम टू फाइंड आउट द डिजीज दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, और उसकी वजह से, उसकी हेल्प से क्या होता है कि जर्म्स की जो है कितनी क्वालिटी है, किस वो कैटेगरी के हैं, किस तरह से वो इफेक्ट कर रहे हैं, और कैसे उनको दूर किया जा सकता है, कैसे उनको मारा जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन डेवलप की जाती है, और पेशेंट को वो प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे कि उसकी जो है डिजीज है, बीमारी है, वो क्या हो सके, दूर हो सके। तो इस तरह से क्या क्या हुआ, काफी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इससे काफी अपने जो लोग हैं, वर्ल्ड हैं, इसको काफी उनसे हेल्प मिला। ओके, नेक्स्ट अपना
मशीन्स दैट कैन लुक इनसाइड योर बॉडी, मशीनें जो कि अपनी बॉडी के अंदर भी देख सकती हैं। ये है सर्जरी है, जो भी एंटीबायोटिक्स हैं, काफी टॉपिक्स है अभी इसमें, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के टॉपिक है, इसमें जो भी है वो समझ में नहीं आए तो आप अभी मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको हाफ मिनट दे रहा हूँ। एनी क्वेश्चन, कुछ डाउट हो जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें, अभी पूछिए। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो डाउट, ओके। तो फिर आप ये क्वेश्चन आंसर कर लेना इससे पहले वाले लेसन के, और इस चैप्टर को भी रीड करना। जो भी प्रॉब्लम हो समझ में आए नेक्स्ट क्लास में पहले हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।